वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परसुएशन इन बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द persuasive strategies in business communication. So in that first we'll take the concept of persuasion. ठीक है, तो persuasion क्या होता है वो हम देखेंगे। So in that the first point is persuasion is the act of influencing someone to believe or consider a certain point of view by using a argument और रीजनिंग। ठीक है, तो परसुएशन क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, मीन्स किसी पे प्रभाव डालना। ठीक है, कि किसी चीज़ में उनको मीन्स विश्वास दिलाना। ठीक है, सो कंसिडर सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू बाय यूजिंग द आर्गूमेंट एंड रीज़न। तो उसके लिए कुछ रीजंस देके या कुछ आर्गूमेंट प्रोड्यूस करके हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ परसुएशन। सो परसुएसिव एंड इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन are the foundation of any successful organization regardless of size, industry and geography. ठीक है, सो परसुएशन का की वजह से हम उसका इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में एज अ फाउंडेशन यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी यूज regardless of the size of that industry and the geographical of that particular organization. So persuasion has a effect on every organization. So the ability of persuasive and effective is achieving communication goals requires the trusting and positive relationship. ठीक है, तो यहाँ पे जो persuasion है या एंड इफेक्टिव अचीवमेंट्स है एज अ for a better communication to achieve or acquire the goals. Okay, so that can be depend on the trust and the positive relationship. So building a relationship takes a time, attention and constant nourishing as well as willingness to give and receive the constructive feedback whenever necessary. ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग रिलेशनशिप है इट टेक्स द टाइम। ठीक है, अटेंशन and also the feedbacks whenever it is required. Okay, so that is the some points related to the this persuasion. Then we'll see the persuasion according to the communication scholaries. So in that first point is a communication process in which communicator seeks to elicit desired response from the receiver. ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए रिसीवर जो कि ऑडियंस है या जो भी हो, टॉक या जो कम्युनिकेटर जो बात या स्पीक कर रहा है वो रिसीवर से यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। So a conspicuous attempt by one individual to change the attitudes, beliefs and or behavior of another individual or group of individual through the transmission of some message. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज डिलीवर होगा कम्युनिकेटर से, ठीक है, तो उसमें बिलीफ्स होना चाहिए। ठीक है, देन जो भी ग्रुप वो मैसेज सुन रहा है, ठीक है, so that has the attitude. So these are the points requirement for the persuasion. So here different definitions of persuasions are combined, and here algorithm is made according to it. So persuasion is a symbolic process in which communicator try to convince other people in the change their attitude and behavior regarding the issue through the transmission of message in an atmosphere of free choice. ठीक है, तो परसुएशन एक सिंबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो भी कम्युनिकेटर है
ठीक है, या स्पीकर है, वो सब लोगों को या अदर पीपल्स को कन्विंस करेगा टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिगार्डिंग एन इशू। ठीक है, तो जो भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी इशू है रिगार्डिंग दैट, उनका जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करने का काम करेगा कम्युनिकेटर थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग द मैसेज और इन्फ्लुएंसिंग दैट पीपल। ठीक है, and it will create the free of choice atmosphere over there, so that is the persuasion. So here different definitions are combined. So the advantages of persuasion in business communication: second one will be the persuasion appeals to the self-interested of the people being convinced. Persuasion is effective when the receiver is accepted actually. Then disadvantages of persuasion in business communications are: a salesman will incense tongue can easily cheat a buyer by selling a defective good. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्समैन जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, परसुएशन का यूज़ करके उसका जो प्रोडक्ट है और वो सेल करके कस्टमर को, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से चीट कर सकता है। सो परसुएशन इज़ अ डबल एज वेपन और समथिंग द सुपीरियर में बी फुलफिल हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, तो ये दो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, परसुएशन के। ओके, then the next point is the following are the effects of persuasion that influence communication. They are shaping, reinforcing and changing the response। ठीक है, तो परसुएशन की वजह से हम किसी भी एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसके जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए। तो सबसे पहले है शेपिंग। ठीक है, सो एटीट्यूड्स आर शेप बाय associating perceivable environment with a product, person or idea। ठीक है, second one reinforcing, a contrary to popular opinion may perceive communicates are not designed to convert people but reinforce a position they already hold। And third one is the changing, so this is perhaps the most important persuasive impact and one that comes most of frequently to mind when the thing of persuasion। so communication can and do change the attitude। ठीक है, तो चेंजिंग मीन्स यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के ज़रिए जो अदर पीपल्स का जो एटीट्यूड है रिगार्डिंग या पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एन इशू, सो दैट कैन बी अ चेंज। सो दैट इज़ द चेंजिंग पॉइंट फॉर द दिस persuasion। So study of persuasion today is extremely important for the 5 basic reasons। ठीक है, तो persuasion का स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसके 5 बेसिक रीजंस यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए। विल सी वन बाय वन। सो द फर्स्ट रीज़न टू स्टडी द persuasion इज द शेयर नंबर ऑफ persuasive communication हैज़ ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो जो persuasive communication का जो ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है डे टू डे। सेकंड, परसेसिव मैसेजेस ट्रैवल फास्टर देन एवर बिफोर। तो जो परसेसिव मैसेज है जो कम्युनिकेटर अदर पीपल्स को मैसेज ट्रांसमिट करेगा, सो दैट कैन बी ट्रैवल फास्टर देन एवर बिफोर। थर्ड रीज़न, परसेसिव हैज़ बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज, मीन्स इंस्टीट्यूट में वो यूज़ हो सकता है। ओके, fourth one, persuasive communication has become more subtle and devious। and the fifth one is the persuasive communication is more complex than ever before। ठीक है, तो अभी जो है persuasive communication कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पहले से। so these are the 5 reasons, that's why we have to study the persuasion as a important। Next point is the aspect of persuasion at work। so the first aspect is understanding the audience। ठीक है,
तो जहाँ पे भी परसुएशन का कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे जो ऑडियंस है, ठीक है, या अदर्स पीपल जो मैसेज सुन रहे स्पीकर का, ओके, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, ये पॉइंट ऑफ व्यू मेन है, ओके। सो विथ एनी कम्युनिकेशन बट स्पेशली विद द persuasion communication or through understanding of the audience for the communication is critical. So business people must consider who they are, whom to communicate with, whether individuals or groups, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटर है वो किसको मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ओके, या वो कौन से बैकग्राउंड से आए, ठीक है। तो ये सब कुछ जानना वहाँ पे नेसेसरी है। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। सेकंड वन, एड्रेसिंग ऑडियंस इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्शंस, ओके। थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द targeted audience lead to insight into what the audience interests are, and in case of persuasion communication, ओके, एंड तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो किस चीज़ में, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो कम्युनिकेटर है वो उस हिसाब से जो मैसेज है, ठीक है, तो वो मैसेज पास करेगा, ठीक है, बाय कंसिडरिंग द ऑडियंस interest. Then next one will be the choosing the right medium. So stopping in unexpectedly to meet with the colleague to discuss as issue is a good idea only if that colleague preferred a medium for communication, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए परसुएशन कम्युनिकेशन के लिए। इफ़ द कलीग प्रेफर्स ईमेल then persuasion or persuasive opportunity may be lost. For effective persuasion communication, it is important to choose the medium that is most appropriate both to the message and the audience preferences, ठीक है। तो यहाँ पे जो persuasion का जो मैसेज है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव तरीके से पुटअप करने के लिए जो मीडियम है, ठीक है, तो मीडियम परफेक्ट होना चाहिए एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट, टेकिंग द टाइम टू लिसन, ठीक है, तो रेयरली इज अ कम्युनिकेशन इज़ वन वे, सो इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टेंट टू वे कम्युनिकेशन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू परस्यू द ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ द इशू, ठीक है। तो रेयरली जो है वन वे कम्युनिकेशन होता है, बट टू वे कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू परस्यू एन ऑडियंस। मीन्स जो स्पीकर है, speaker can speak the message, and from audience can make the questions on that. So that is a simple example of two-way communication, so that will be a better. Next one is the building a strong relationship. So effective communication is built on strong relationship, and that are able to communicate even the most sensitive message to individual and audience with whom we are establish a solid ट्रस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप कोई सेंसिटिव मैसेज पास कर रहे हो इंडिविजुअल को या ऑडियंस को, ठीक है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द दिस ऑडियंस एंड इंडिविजुअल्स। So these are the main 5 points or the aspects of the persuasion at the work. The next point is persuasion used in advertisement or advertising, ठीक है। How persuasion is used in advertising. So in that the first point is advertising is paid mediated form of communication for an identifiable source and designed to pursue the consumer to take an action, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक पेड प्रमोशन है और पेड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो एक तरह से एक सोर्स है दैट इज़ डिज़ाइंड टू परस्यू द कस्टमर टू टेक द एक्शन, ओके। सो परसेसिव कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज द परसेसिव टेक्निक्स टू कैच द कंज्यूमर इंटरेस्ट। पीपल्स रिएक्ट to the same advertisement differently and make the decision on how to spend their available resources on consumption related items, ठीक है। तो persuasion
या परसेसिव जो कम्युनिकेशन है ये एक टेक्निक है। ओके, तो इसकी वजह से कस्टमर को हम कैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, हाउ दे कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। ओके, so depending on that we can approach these people through the advertisement and make the decision how they spend their money. Okay, so third point is to decide on above variables. The perceived consumer is forced to choose a particular product due to the perceived language behind the advertisement. तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट में इस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, परसेसिव लैंग्वेज, ताकि जो भी कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो या फोर्स टू चूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। तो इस तरह का लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर टूवर्ड्स आवर प्रोडक्ट। सो द लैंग्वेज ऑफ परसेसिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग का जो अगर कैंपेन चलाना है तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रहा है परसुएशन में, सो दैट इज़ द मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट। सो मोर एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड टू परसेसिव इन ऑर्डर टू बूस्ट द आइडिया एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होता है मोस्टली एडवर्टाइजमेंट में, तो वहाँ पे परसेसिव का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द परसेप्शन विच आर यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। Then next point is there are some guidelines or the principles for persuasion. So first will be the identification principle. So most people will ignore an idea, an opinion or a point of view. Okay, so they are see clearly that affects the personal fear, desires, hopes and aspiration. So your message must be stated in terms of interest of your audience, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल उसमें होना चाहिए परसुएशन में, जो भी ऑडियंस है उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसे पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपने मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। सो योर मैसेज शुड कंटेन्स द कंसिडरेशन ऑफ द ऑडियंस इंटरेस्ट। सेकंड वन, एक्शन प्रिंसिपल, पीपल सेल्डम बाय आइडियाज सेपरेट फ्रॉम द एक्शन टेकन or about the taking by the sponsors of the idea or actions that the people themselves can conveniently take to prove the merit of idea. So unless a mean of action is provided, people tend to shrug off the appeal to do the thing, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सो दैट कैन बी एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम द स्पॉन्सर्स ऑफ द आइडिया, ठीक है, तो जहाँ से आइडिया स्पॉन्सर हो रहा है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट द एक्शंस विल बी टेकन। देन थर्ड विल बी द प्रिंसिपल ऑफ फैमिलिटी एंड द ट्रस्ट। व्हेन वी बाय द आइडियाज़ फ्रॉम ओनली दोज वी ट्रस्ट, ठीक है, तो हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनसे ही हम वहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। सो दैट इज़ द बेटर। सो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और अडेप्ट ओनली दोज ओपिनियंस or viewpoints that we regard as a credible, ठीक है, तो जिन पे हमें विश्वास है उनसे हम आइडियाज़ लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फैमिलिटी एंड द ट्रस्ट। एंड लास्ट वन इज़ द क्लैरिटी प्रिंसिपल। सो द सिचुएशन मस्ट बी क्लियर टू अस, द थिंग्स वी ऑब्जर्व, रीड, सी और हियर, द थिंग्स दैट प्रोड्यूस आवर इम्प्रेशन मस्ट बी क्लियर, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो ऑब्जर्व हो रहा है, रीड हो रहा है, जो दिख रहा है, जो हियर हो रहा है, सो दैट मस्ट बी अ क्लियर। ओके, सो दीज आर द टोटल 4 प्रिंसिपल्स फॉर द और द गाइडलाइंस फॉर द परसुएशन। So that will end this persuasion topic. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 का पार्ट C स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।